If we turn back time to the summer of 2024, things were looking very grey, very gloomy at the Stamford Bridge. It wasn't a summer of sunshine, rather, it was a summer of chaos, confusion. Many people didn't know what was going on after all. There was a lot of confusion among the people, especially among the fan, the journalist, the pundits. Everybody was confused क्योंकि मॉरिसियो पोचेटिनो को आफ्टर हैविंग अ गुड एंड टू द सीजन जस्ट सैक कर दिया गया था एंड हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स आपस में लड़ रहे थे, दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। ऐसा न्यूज़ हर जगह छाई हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था टॉड बोली क्या कर रहा है। इकबाली और टॉड बोली के बीच में लड़ाई की बातें चल रही थी। इट वॉज ऑल अ chaos. And then Chelsea appointed Enzo Maresca in middle of all of this chaos. And guys, what a turnaround it has been. किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था जो क्लब लास्ट सीजन बड़ी मुश्किल से 6th प्लेस में लास्ट किया है, वो इस सीजन ऐसी स्टार्ट देगा, स्पेशली इतने ब्लोटेड स्क्वाड के साथ जहाँ पे 40 प्लेयर्स हैं। किसी को ये नहीं पता कि कौन खेलेगा, कौन फर्स्ट टीम का पार्ट बनेगा, कौन सेकंड टीम का पार्ट बनेगा, कौन सा प्लेयर सेल ऑफ हो जाएगा, ये किसी को न्यूज़ नहीं थी। इन सारे सिनेरियो में एंजो मरेस्का वॉक्स इन एंड ही कंट्रोल्स द सर्कस गाइस. He has been very harsh. He has been very straightforward, cutthroat, no doubt, guys. As soon as Enzo Maresca came, Sterling was made out of the club. Chilwell was sidelined. Chukwuemeka is sidelined, right? Players that have been appointed by sporting directors like Enzo Fernandez, Robert Sanchez, इन लोगों पे बहुत ज़्यादा फोकस करवाया गया। पेट्रोविच जिसने लास्ट सीजन अच्छा मैच खेले थे, उसको कंप्लीट साइडलाइन कर दिया। कॉर्नर गैलेगर को, ट्रेवर चेलाबो को बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल फेयर प्ले के लिए सेल ऑफ कर दिया। सो इट हैज़ बीन अ chaos, करेक्ट। एवरी चेल्सी फैन वॉज लाइक ये क्या हो रहा है भाई। बट यू नो, पेशेंस, सबर, सबर का फल मीठा होता है कहते हैं ना, वैसे ही कुछ होता हुआ अब दिख रहा है चेल्सी के साथ। एंजो Enzo Maresca has transformed this club, this team, the right way that it was supposed to. Every pundit out there, चाहे वो कैरेगर हो, चाहे वो गैरी नेविल हो, चाहे वो इवन क्रेग बर्डली हो, all of us Chelsea fans hate him. But every one of them has changed their words. Every one of them sees the potential in Chelsea now. And everybody is talking funnily. Chelsea is in the title race. Chelsea is in the title race. क्या चेल्सी टाइटल रेस में है? आई लेट यू नो माई कमेंट्स अहेड इन द वीडियो गाइज, बट आप ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या चेल्सी टाइटल रेस में है? स्पेशली आफ्टर द रिजल्ट ऑफ दिस वीकेंड, after this great victory over Brentford 2-1. Yes, guys, Chelsea won against Brentford at Stamford Bridge in the West London derby. And guys, what a thumping, satisfying, controlled win it was. किसी ने नहीं सोचा था कि चेल्सी विल गो ऑन विनिंग स्ट्रीक ऑफ 5 games in Premier League, guys. So this has been something complete turnaround, and everybody is taking notice of Chelsea now, and they should be, because Chelsea is showing what a really good form is. All in all, it was a great result for Chelsea, especially because rivals have dropped their points. Liverpool ने point drop किए हैं. They went 10 men down within I guess 20 minutes or so. एंडी रॉबर्टसन ने बहुत गंदा फाउल किया एंड उसको रेड कार्ड मिला, सो दे वर 10 men down within 20 minutes, and from there Liverpool drew 2-2. So that was good. They are showing their spirit that they are hungry for the title. They can smell blood. Manchester City, well, their their losing streak continue, guys, and Manchester is red. Yes, guys, Red Devils have won. Manchester United has won. एंड आपको पता है सरप्राइजिंग चीज़ क्या थी? मेरे को नोटिफिकेशन मिली थी मैनचेस्टर सिटी इज़ 1-0 अप एंड आई एट हाफ टाइम और समथिंग, एंड आई वाज लाइक या कोई नहीं, चलो शायद सिटी जीत जाए। बट मनी वन मेरे को पता था यही चांस है यूनाइटेड के पास इतने सालों बाद कि फाइनली सिटी से जीते,
एंड यू नो व्हाट हैपेंड गाइस, मैंने जैसे टीवी ऑन किया, जैसे ही मैच स्टार्ट किया, और मेरा फ्रेंड आया हुआ था मेरे साथ, आई वॉज टेलिंग हिम कि कैसे मैनचेस्टर सिटी की फॉर्म हैजंट बीन गुड, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का बस यही एक लौता मौका है मे बी टू स्कोर, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन इट सेल्फ हैजंट बीन गुड। कैसे एमोरिन को नए मैनेजर को लेके आए ये लोग इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज थिंग्स, बिकॉज ही वॉजंट अपडेटेड विद फुटबॉल फॉर अ वाइल। एंड यू नो जैसे मैंने मैच ऑन किया, यू नो व्हाट हैपन्स, 85th मिनट, बैंग ऑन, ब्रूनो फर्नांडिस को पेनल्टी मिलती है विद इन 2 minutes ahead. What happens? Crazy goal from Ahmad. And guys, Manchester United wins. Yes, guys, Manchester United wins. That too at Etihad. And Manchester is red again. सो सारे रेड डेविल्स के फैंस, स्पेशली सारे फैंस इन इंडिया, क्योंकि हम बचपन में जितने भी बॉयहुड फैन क्लब्स हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ही होते थे। एंड क्या राइवलरी होती थी यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी की उस ज़माने में। आई मिस दोज डेज, बट एट द सेम टाइम यूनाइटेड इज़ प्लेइंग लिटिल बेटर। मेरे को रूबन आमोरिम के बारे में ये बात ज़रूर करनी पड़ेगी कि ही हैज़ बीन रूथलेस, स्पेशली उसका डिसीजन जिसके बारे में सब चर्चा कर रहे हैं गाइस। उसने रैशफोर्ड को और गर्नाचो को इस मैच में नहीं खिलाया, उन लोगों को सुबह सुबह ट्रेनिंग करने भेज दिया, बट उन लोगों को अलाउ भी नहीं किया कि वो इस मैच में आके खेले। यू नो हाउ ruthless he is showing himself to be, and he's a counter attacking manager. Garnacho and Rashford becomes very important for him, but again he is very clear, he's stamping his authority in the club, and that is what something that United might does need. एक बैकबोन होती है ना, बैकबोन की जरूरत है, and maybe Ruben Amorim can develop that backbone in United. We'll have to see. But anyways, that was Manchester derby. एंड सिटी के बारे में बात करूँ तो सिटी हैज़ हिट अनदर ऑल टाइम लो। आई थिंक पेप गार्डियोला की लाइफ का सबसे वर्स्ट मैनेजरियल पीरियड जा रही है अला। ही इज़ एक्चुअली क्लूलेस, एंड वो खुद एडमिट कर रहा है कि ही इज़ नॉट गुड एनी मोर एट द मोमेंट, एंड एवरीबडी इज़ लाइक क्या पेप को सैक कर देंगे सिटी वाले या फिर उसके अराउंड स्टिक करेंगे। एंड बहुत सारी चर्चा तो यही है कि सिटी को रूल ही पेप गार्डियोला करता है, तो चांसेस ही नहीं है कि गार्डियोला को निकाला जाएगा, बट उसको सारा मौका दिया जाएगा, सारे चांसेस दिए जाएंगे। आई एम लाइक ओके अबाउट इट, क्योंकि यार देखो, बीइंग अ चेल्सी फैन आई एम वेरी क्लियर, एक क्लब का दबदबा बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता। चेल्सी का भी दबदबा था एक टाइम पे, सिटी आई बीच में दूसरी टीम्स आके जीत जाती हैं कभी कभी, राइट। बट सिटी का विनिंग स्ट्रीक हैज़ बीन क्रेजी, एंड वो लेवल्स हर साल मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड दिस इज समथिंग दैट दे आर फेसिंग। प्लस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पेप गार्डियोला थोड़ा ज़िद्दी है, वो अपने strategies को, अपने tactics को he is not changing as much as he can. He is not being flexible enough, and somehow I feel like उसकी life का वो वाला patch चल रहा है when he doesn't want to listen to anybody and he's in a destructive zone, and with him he's destroying his club. People are talking maybe in January City can sign new people, especially the defensive midfielder, maybe some few more defenders. बट आई बिलीव जनवरी तक अगर वो लोग ढंग से खेल ही नहीं पाए तो बचेंगे क्या, और फिर खरीद के करेंगे क्या। सो या दैट इज़ व्हाट द सिटीज़ फॉर्म इज। इट्स लिटिल सैड टू सी, बट यूनाइटेड वॉन एंड लिवरपूल ड्रू एंड आर्सेनल ऑल्सो ड्रू। सो चेल्सी हैड ऑल द चांसेस इन द वर्ल्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, एंड ओल्ड चेल्सी is the new Chelsea now, guys. Yes, we are seeing the old Chelsea spirit, and Chelsea won this match. We won it in the end 2-1. एक्चुअली में 2-0 स्कोर था 90 मिनट्स तक, एंड देन 90th मिनट में इट गॉट 2-1, विच इज़ गुड क्योंकि ब्रेंटफोर्ड प्लेड वेरी वेरी गुड। ब्रेंटफोर्ड पुट अप अ वेरी गुड लो ब्लॉक, हमारे प्लेयर्स को बहुत इनोवेटिव होना पड़ा, क्रॉसेस पे क्रॉसेस, मल्टीपल बॉल पास थ्रू, मल्टीपल पासेस, इधर से some few chances created, some skills were shown, a lot of effort was put in, and finally guys, Chelsea grinded a win, and that is what the spirit of Chelsea should be, guys. That is the old Chelsea spirit. When we used to win, no matter any club comes, we were always ready to secure 3 points, and in our worst days we were always drawing. So that is the Chelsea that was from the old, guys, and that is something that we are seeing now.
and this is something beautiful to see, guys. If you like the Chelsea's win, guys, if you like the Manchester United win, if you liked how Premier League has just opened up, do like the video, smash that like button, and also share this video among your friends, family, and all the Premier League and all the football fans. एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, गाइस. आपको पता है ये चैनल न्यू है, तो जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना शेयर करोगे, उतने लोगों तक पहुंचेगा. सो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन शेयरिंग, एंड गो दिल से ब्लूज. दिस हैज रियली रेज द क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा था, क्या चेल्सी प्रीमियर लीग की टाइटल रेस में है? फॉर मी पर्सनली, नॉट येट. यू विल बी सरप्राइज लाइक शिवम, व्हाई आर यू सेइंग इट अगेन? लाइक पिछले मैच तक ठीक था, बट इस मैच के जीतने के बाद वी आर जस्ट 2 पॉइंट्स, यस गाइस, 2 पॉइंट्स सेपरेटिंग अस एंड लिवरपूल, दो दे हैव वन मैच इन देयर हैंड्स एज वेल, बट हम 2 पॉइंट्स से बिहाइंड है. सो टेक्निकली इफ आर्सेनल इज इन द टाइटल रेस, इफ सिटी वॉज इन द टाइटल रेस, देन चेल्सी शुड बी इन द टाइटल रेस, राइट गाइस? ऑनेस्टली कहूँ नहीं, क्योंकि यार हमारी जो टाइटल विनिंग टीम्स रही हैं, आप लोगों ने ओवर द ईयर्स देखा, चाहे वो मुरीनियो वाली टीम हो, चाहे वो कॉन्टे वाली लास्ट टीम हो जो टाइटल जीती है, इवन हमारी चैंपियंस लीग विनिंग टीम जो रही है टूचल वाली, वी न्यू दिस टीम, वी न्यू इन कप कॉम्पिटिशन वी आर रियली सॉलिड, दैट वी कैन रियली विन इट. सिर्फ सिटी से डर था, एंड सिटी को हमने फाइनल में हरा दिया था, तो दैट वॉज ऑसम. बट नाउ वी हैव गॉन डाउन टू सच ए लेवल कि यार चलो ये विक्ट्री हो जाए, वो विक्ट्री हो जाए, अच्छा लगने लगता. अब देखो, अब हम लोगों ने 5 कंटिन्यूस मैचेस जीते हैं प्रीमियर लीग में, एंड एवरीबडी इज लाइक चेल्सी इन द टाइटल रेस, क्योंकि दूसरे क्लब्स ने पॉइंट ड्रॉप करे हैं, एंड चेल्सी इज विनिंग. So Chelsea is in the title race. Chelsea is in the title race. Everybody wants to say that, and everybody wants to, somehow make. I don't know what are they trying to get out of it, but they want to have this conversation. So ठीक है भाई, टाइटल रेस में पर्सनली हम नहीं हैं, क्योंकि टाइटल विनिंग टीम के अंदर वो क्वालिटी जो होती है, डिफेंसिव क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर मिसिंग राइट नाउ. बट एट द सेम टाइम एंजो मेरेस्का से जब एंजो मेरेस्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई मैच के बाद, एंजो मेरेस्का सेड दिस अगेन यार, कि पर्सनली ही डजंट थिंक कि वी आर इन द टाइटल रेस, बिकॉज अगर हम टाइटल रेस में होते तो 90th मिनट पे जो गोल हो रहा है, टाइटल विनिंग टीम, टाइटल रेस में लड़ती हुई टीम ऐसा नहीं करती है. वी डू नॉट लेट गोल्स टू बी स्कोर्ड इन द लास्ट 90th मिनट, राइट? दैट्स ड्रॉपिंग द लेवल्स. सो दैट इज समथिंग दैट a title winning team doesn't do. That is what Enzo Maresca said. So, and I agree to him completely. ऐसा नहीं है, but he is saying at the same time कि fans can believe it. I am happy that fans are happy कि उनको एक belief मिली है बहुत टाइम बाद. जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कैसा लग रहा है उन लोग को कि fans are singing we got our Chelsea back, and fans are singing go Enzo Maresca, go Enzo Maresca. And Enzo Maresca is saying he's feeling really happy क्योंकि ये वाली स्पिरिट चेल्सी से मिसिंग थी यार. एंड ये जिस स्टैचर का क्लब है, यहाँ पे हर साल एक जश्न का माहौल होना चाहिए, हर साल एक माहौल होना चाहिए जब विन करते रहे, खेलते रहे, जीतते रहे, उसी में तो खुशी है. एंड ही इज़ वेरी हैप्पी टू सी इट. येट एट द सेम टाइम ही इज़ ग्राउंडेड. ही फील्स लाइक देयर इज अ एफर्ट एवरी डे, एंड दिस टीम नीड्स टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन. So he's very happy with that progress, but at the same time, he's really grounded. On that note, guys, let's talk about the match between Chelsea and the Brentford. The match was really hectic. On the go tha. Though Chelsea was in control for the maximum part of the match, but at the same time, Brentford was very counter-attacking, very strong in its defense. They were putting up a low block defense structure, and guys, they were playing like their logo is. बीज की तरह, वो मधुमक्खी की तरह स्टिंग कर रहे थे, मौका मिल रहा था, आगे आ रहे थे. और ऐसा मैच था कि सबको स्टेप अप करना पड़ा, बहुत अच्छे से स्टेप अप करना पड़ा. एंड एज यू आर सीइंग गाइस ऑन द स्क्रीन कि सबकी टीम रेटिंग में एवरीबडी हैज स्कोर्ड अ रियली गुड number. Average score 7 रहा है सबका, and this has been a really good performance all and out from Chelsea. So we'll talk about the 6 main points that we learned from the match between Chelsea and Brentford. The first talking point है हमारा first goal scorer, that is Marc Cucurella, guys.
Marc Cucurella had a awesome match, of course, क्योंकि Marc Cucurella has always got this roller coaster, this dramatic, this crazy feeling about him. उसने फर्स्ट हाफ में अबाउट 40th मिनट में क्या ब्यूटिफुल हेडर स्कोर किया. इट वॉज एन ऑसम पास बाय नोनी मैडविके एंड विल टॉक अबाउट हिम इन द फर्दर इन द वीडियो. बट क्रेजी पास फ्रॉम नोनी मैडविके from the right wing into the box directly, just in front of the goalkeeper, and what a goal by Marc Cucurella. Nobody really imagined वो भी अपना पहला चेल्सी का गोल स्कोर करेगा, वो भी सीधा हेडर से. Nobody thought that. But Marc was very smart. And this has been so beautiful from Marc Cucurella, and all in all performance from him. And of course in the end रेड कार्ड मिलता है उसको, वो भी मैच खत्म होने के बाद. ये मेरे को भी अभी तक समझ आया नहीं है. रेफरी का कहना है कि बिकॉज ऑफ मिसकंडक्ट मिला है, ऐसा मेरिस्का का कहना है कि रेफरी ने ये कहा है बिकॉज ऑफ मिसकंडक्ट ही गॉट द सेकेंड येलो मार्क कुकरेला एंड दैट्स ही गॉट दिस रेड कार्ड. बट आई बिलीव यार रेड कार्ड की तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ही हैज़ टू बिकम रिस्पॉन्सिबल गाइज नाउ. ही इज़ 25-26 years old, I get it. But at the same time, the next match becomes very, very important, and Everton it is, and we have to go to Merseyside and kind of win it, and this is going to be very important for us to win, of course, because हमें ये winning streak को continue करना है. Simple guys. हम लोग टाइटल रेस में हैं नहीं है, ये सब कुछ तभी डिसाइड होगा जब हम हर एक मैच, स्पेशली नेक्स्ट मैच जो भी टीम से हो रहा है, इस केस में एवर्टन के साथ है, तो हम जीतेंगे नहीं तो हम रेस में नहीं होंगे. तो सिंपल एज दैट. So this was Marc Cucurella's performance, and he has to mature up definitely, but at the same time मेरे को ऐसा लग रहा था वो प्लेयर से हाथ मिलाने जा रहा था, बट उसने हाथ नहीं मिलाया तो उसको गुस्सा आ गया और उसने धक्का दे दिया. somehow this was the scenario. I can't be sure guys, but Marc Cucurella is our first talking point. And moving to the second talking point is the second goal scorer guys, that is Nicholas Jackson. Yes guys, Nicholas Jackson, here he is finally putting words to action. Yes guys, he's putting words to action, though he missed two good chances. One was a sitter guys, one was like ये क्या किया इसने, क्योंकि गोल के सामने था, बॉल सीधा उसके पास आई. somehow he wasn't expecting the ball I guess, इसलिए उससे वो सही से शॉट नहीं ले पाया. सीधा बॉल उसके पैर पे आई on his left foot and he kind of missed. but उसके 10 minutes के बाद ही finally guys, on a very good movement, and Enzo Fernandez का beautiful through ball, and Jackson was on through. He's the guy to look out for guys. ये बंदे के अंदर हंगर है, इस बंदे ने डिज़ायर शो करी है. एटलीस्ट ये वर्बली बोल बहुत रहा है, अपने इमोशन दिखा रहा है, रो रहा है जब गोल स्कोर नहीं कर पा रहा है, एंड फाइनली स्कोरिंग दोज गोल्स. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि बंदा कितना भी बोले ना, फ़ायदा नहीं है यार जब तक गोल स्कोर ना करे. एंड ही स्कोरिंग गोल्स, दैट्स ऑल वी केयर. सो मारते रहे ऐसे गोल, एंड ही इज़ बीइंग talked by every pundit as one of the finest striker in the Premier League, or as one of the most changed person in the Premier League. He definitely is. He's showing that. मैं इसके केस में ना, जैसे हम लोग टाइटल रेस के केस में हैं, I'll be like बस काम करते जाओ, बाकी कुछ बातचीत नहीं करते इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि टच वुड ये ऐसे ही ग्रो करता रहे. जब ये 20 गोल्स पर सीजन आउटपुट देगा ना, डियागो कोस्टा जितना ही आउटपुट देने लग जाए, तब हम निकोलस जैक्सन को जेन्युइनली एज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्राइकर इन द प्रीमियर लीग कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे या रेट करना स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज हिज सीजन टू शो अस दैट फ्रॉम द 9 goals he has right now, can he go to the 20 goals? Do you feel like can he cross that 20 goal mark in this season guys? Do let me know in the comments. And moving forward to our third talking point, and I believe the most important person in Chelsea's title hopes or the current form that we are having. No guys, it's not Cole Palmer this time, it's going to be Moises Caicedo. Yes guys, Moises Caicedo is the person, the real reason, the marshal in our midfield that is controlling all the match. आप जैसे इसका हीट मैप देख रहे होगे ऑन स्क्रीन, गाइस, ये बंदा कहाँ नहीं है. आप देखो,
हर एक जगह ही एग्जिस्ट. ही इज बिकमिंग लाइक एनगोलो कांटे. एनगोलो कांटे का इंजन, उसकी डिफेंसिव पावर, उसकी अटैकिंग पावर, इट वॉज वर्ल्ड क्लास, इट वॉज एलीट. ही इज वन ऑफ द बेस्ट, if not the best midfielder ever to be playing in Chelsea. So was Makelele and so was Michael Essien. But N'Golo Kante ka level I believe was at top, and so was Makelele. And you know what, guys? Caicedo is a mix of all of them and beyond. And ये लड़का सब कुछ दिखा रहा है. ही इज एवरीवेज विनिंग द बॉल इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द मैच. उनके हाफ में जब वो गोलकीपर से बॉल अपने एक डिफेंडर को, दो डिफेंडर को, मिडफील्डर्स को पास कर रहे हैं, तब जाके वो बॉल को इंटरसेप्ट करता है. एंड वहाँ पे हमारी बॉल पोजीशन विन करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना गाइस, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड वाज हैविंग सच अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर. चेल्सी को कंटिन्यूस एफर्ट पे एफर्ट, अटैक पे अटैक करना था, ताकि ब्रेंटफोर्ड अपना कंसंट्रेशन लूज करे. एंड जैसे एक मौका मिले, वही एक मौका था चेल्सी के पास गोल स्कोर करने का, एंड वी कुड स्कोर इट. एंड इट वाज अ क्रेजी गोल, एज यू कैन सी, मार्क कुकरेला का. सो this was all coming down to how Caicedo played in first half, in second half, both halves, guys. And he is one of the best finds of the Premier League. No doubt he has been one of the most expensive midfielders ever, but why not? If he can play like this in, day out, game on game, year by year, like N'Golo Kante used to do, like Makelele used to do, like Michael Essien used to do, then guys, we can win Premier Leagues, we can win Champions Leagues as well, we can win lot of cups. बिकॉज किसी भी टाइटल विनिंग टीम का मिडफील्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली डिफेंसिव मिडफील्ड. एंड वेन एवर वी हैव वॉन, राइट, वेन एवर वी हैव वॉन, वी ऑलवेज हैव गुड डिफेंसिव मिडफील्ड. N'Golo Kante, Emmanuel Matic, Michael Essien, Makelele, you name it, guys. That's where Chelsea has always thrived, and we have Moises Caicedo. So all the hopes on Moises Caicedo, guys. Next is Noni Madueke. Yes, guys, Noni Madueke, the pirate of the right wing. Yes, guys, I'll call him the pirate from the right wing, क्योंकि ये बंदा क्या फॉर्म दिखा रहा है. ही हैज़ बीन नेम्ड द प्लेयर ऑफ द मैच बाय मेनी ऑफ द पंडिट्स, बिकॉज ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट गोल. उसका असिस्ट ही फर्स्ट गोल को कन्वर्ट कर पाया. उसके अलावा ही क्रिएटेड लॉट ऑफ चांसेस. ही वॉज वेरी डायरेक्ट ऑन द गोल. एंड आई एम लाइकिंग दिस बॉयज प्रोग्रेस, बिकॉज ये अपना एटीट्यूड सुधार रहा है, ये अपनी प्रोडक्टिविटी सुधार रहा है. ही इज नॉट लिमिटिंग हिमसेल्फ टू वन गोल, वन असिस्ट, दैट्स इट. ही इज मूविंग फॉरवर्ड, ही इज पुशिंग हिमसेल्फ. क्योंकि नोनी मैडुएकी की भी सीलिंग बहुत हाई है, गाइस. वी ऑल से दैट, इवन एंजो मेरेस्का इज सेइंग दैट, एंड वी वांट हिम टू स्कोर गोल्स, वी वांट हिम टू मेक मोर असिस्ट. एंड अगर ये टोटल अपना 15-16 से ऊपर असिस्ट प्लस गोल्स का काउंट भी देता है ना इस सीजन, इट विल बी ऑसम, गाइस, क्योंकि दैट मीन्स Chelsea will be winning definitely something in this season if he can give that kind of output. And I have high hopes from Noni Madueke. And it was a great assist from him. Also, defensively, he's working fine. And on that note, Noni Madueke, keep on progressing, man. Then we'll talk about our fifth point. Fifth, but not the least. That is our goalkeeper, Robert Sanchez. Yes, guys, in the pre-match prediction, I told you guys कि अगर रॉबर्ट सैंचेज could do a good shot stopping, अगर उसने गोल कीपिंग अच्छी करी, तो maybe he can keep a clean sheet, but he couldn't keep a clean sheet. But anyways, saying that, he was really good, guys. I'm surprised how good he has been. But on the contrary, guys, Robert Sanchez was really good. He actually could save, I guess, 2 or 3 very important chances. चाहे वो पोल वाला चांस हो, चाहे वो एक फाइनल मोमेंट्स का फिंगर टिप सेव हो, चाहे वो इनिशियल सेव हो. ही वॉज रियली गुड एट इट. ही वॉज रियली गुड एट द क्रॉसेस. एंड रॉबर्ट सैंचेज, गाइस, आई नो आई एम सेइंग फिलिप जॉर्गनसन को खिलाना चाहिए, पेट्रोविच का नामो निशान नहीं है, and maybe Chelsea can become a title challenger if we have a good goalkeeper. And I really am saying those words again. Yes, if Chelsea does have a really good goalkeeper, then maybe we are actually directly fighting for the title right now. But वो नहीं है reality.
बट एट द सेम टाइम आई बिलीव जैसे सारे प्लेयर्स ग्रो कर रहे हैं, मोइसेस काइसेडो ग्रो कर रहा है यार, पिछले साल वो इतना अच्छा कहाँ खेल रहा था, एंजो फर्नांडिस ग्रो कर रहा है इस साल, एंड मे बी द सेम वे, मे बी जस्ट मे बी रॉबर्ट सैंचेज कैन ग्रो, क्योंकि at times he is making those good passes, at times he is very good at starting the moves from the back itself, and at times he is very good in the air again, especially the set pieces. बट सबसे बड़ा चैलेंज रॉबर्ट सांचेस का यही है कि उसके साथ डर लगता है अभी भी, ऑनेस्टली कहूँगा इस, वो जैसे है ना, ये जो डर की एक सिचुएशन है वो हटा दे, वो उसका अनडिसाइसिवनेस हटा देना अपने मैचेस से, अपने गेम से, एज ही प्रोग्रेसेस इन द गेम्स, I believe he can grow into one of the best keepers. He can definitely mature. And Robert Sanchez had a good match. And especially if he can keep on putting such kind of performances, I'll be really happy. So, Robert Sanchez, guys. And coming to the last point, guys, the visionary, the man of the year, Enzo Maresca. Yes, guys, Enzo Maresca. इसकी तारीफ़ें जितनी करो, जितना इसके बारे में बात करो उतना कम है. एवरीबडी इज़ लाइक, इफ आर्सन स्लॉट नहीं होता इन लिवरपूल, maybe, not just maybe, definitely, in fact, Enzo Maresca would have been currently the manager of the month, the manager of the season, in fact, to be very honest. And that is what the impact of Enzo Maresca has been. आज यू नो स्लॉट ये बोलता है बार बार कि उसको एक बहुत अच्छी टीम देके गया यूर्गन क्लॉप इन लिवरपूल. मैक्सिमम ऑफ द प्लेयर्स आर वेरी एक्सपीरियंस, इतने सालों से एक साथ खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद द इंटेंशन, आइडेंटिटी, सब कुछ डिफाइंड है, सब कुछ अच्छा है लिवरपूल के साथ. सो इट वॉज लिटिल better or little easier for Slot to get into the Liverpool side and manage it and show the form that they are showing right now as the top of the Premier League table. But at the same time, Enzo Maresca ने वो काम किए जो किसी ने imagine नहीं किया था, guys. Coming from Leicester City, nobody was rating him high. Nobody. Even I wasn't rating him high. Maximum of the Chelsea fans weren't rating Enzo Maresca at all. At all, guys, at all. लोगों को लग रहा था ये क्या मजाक है, क्यों ले आए हैं. बट एंजो मेरेस्का इज शोइंग कि भाई ही इज़ द रियल गॉड फादर. वो बंदा आया है ओजी की तरह, ही इज़ इन द प्लेस, ही इज़ इन द, वो बंदा आया है एक प्रॉपर गैंगस्टर की तरह, ही इज़ मेड हिज प्लेस इन द, एकदम गैंगस्टर की तरह ही हैज़ मेड हिज प्लेस इन द क्लब. he's showing that he is the real godfather. वो अपना काम कर रहा है, उसको है कि मैं इन 20 बच्चों को या इन 24 प्लेयर्स को उसको है कि मैं इन 24 प्लेयर्स को खिलाऊंगा, मैं इनको नहीं खिलाऊंगा, मैं इनको नहीं खिला सकता, मैं सबको खुश नहीं रख सकता, बट मैं मैक्सिमम को खुश रखने की कोशिश भी करूंगा. जहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी हुई इनको गेम टाइम देने की, मैं गेम टाइम भी दूंगा. मैं वो हर एक चीज़ करूंगा जो अनएक्सपेक्टेड हो एक ऑपोजिशन के लिए. एट द सेम टाइम वो हर एक चीज़ जो हर एक इंडिविजुअल प्लेयर को एक नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करने में हेल्प करेंगे. दैट इज़ व्हाट एंजो मेरेस्का इज डूइंग, एंड दिस इज रियली अ कमेंडेबल जॉब, गाइज, बिकॉज दिस इज लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज इन टू इट. ऑफकोर्स इट्स हिज जॉब टू डू सो, but many managers, in fact every manager, Thomas Tuchel, Frank Lampard, Mauricio Pochettino, Graham Potter, every one of them single-handedly failed. Some had good kind of results, some had bad, but nobody was taking this kind of value or substantial quality out of the big squad that we had. इतने सारे स्क्वाड होने का एक ये भी तो था ना कि भाई इतनी सारी ऑप्शंस है तुम्हारे पास, इतने डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस है. अगर तुम दिमाग लगाओ और उसको ढंग से उन लोगों को ट्रेन करो और उनको यूज़ कर पाओ, तो हमारे पास ऐसे मैचेस के लिए जहाँ पे टीम लो ब्लॉक करती है उसके लिए एक ऑप्शंस रेडी हैं. जो ऐसे प्लेयर्स जो बॉल को अच्छे से एक दूसरे को पास कर पाए, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे पास कर पाए या क्रॉसेस कर पाए, और हमारे को सोल्यूशंस मिले, हम गोल स्कोर कर पाए और हम गोल स्कोर कर पाए. और अगेन अनदर काइंड ऑफ टीम जहाँ पे मैं काउंटर अटैकिंग खेलना हूँ, क्योंकि दूसरी टीम बहुत ज़्यादा पोजेशन होल्ड करती है और हमें काउंटर अटैक पे खेलना हो, तो हम फास्ट प्लेयर्स के साथ खेलें. This is something that we always had in our squad, and this is something that Enzo Maresca is making sure that he utilizes, this unpredictability, this quality of making every player play
एंड बीइंग रेडी. बिकॉज अगर आप देखोगे इस मैच में हमारे बेंच पे कौन था, एचिंग पोंग था, तारिक जॉर्ज था, मार्क गुई था. Maximum of our senior players weren't there in the on the bench itself. This will be surprising, but illness hoti hai. It is winter season. Maximum players are either injured or illness hai उन लोगों को. Around 7 players are suffering through this kind of scenario, right? So this is unpredictable, guys. This is not FIFA. This is football in real life. So players को injury होती है, illnesses होती है, बहुत कुछ होता है. And at the same time, thus the squad depth comes into the play. And at the same time, वो squad की quality अच्छी होनी चाहिए यार, कि वो first team के हिसाब से खेल पाए. And that is what they are showing, कि उन लोगों को, चाहे वो कोई भी player हो, चाहे experience उसको बहुत कम हो, but उसको first team की identity के साथ, उसको first team के football playing strategies के साथ खेलना आता है. एंड इसी रीज़न से हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग दिख पा रहे हैं. इसी रीज़न से पीपल आर सेइंग दैट वी आर इन द टाइटल रेस. Honestly, guys, maybe we can be when it comes to the January. अगर हमारे पास हम लोग सेम सेकंड पोजीशन पे रहते हैं या फिर थोड़ा बहुत और बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, then maybe we can win the title. Who is saying no to it? But at the same time, we'll have to keep our heads grounded. We'll have to keep on working hard. And that's the spirit. That's the blue spirit. So Blues, let's go and win the next match. And keep on supporting the channel, guys. Come on, keep on supporting football. Dil se Blues.